Hello everyone, welcome to my channel UPSC Decoded. I am Dr. Asif Khan, your friend, philosopher and guide for civil services preparation. And today I'm making a video as in many students will be confused whether to join a test series or not, which test series to join, which test series is the best, can we do टेस्ट सीरीज़ ऑन आवर ओन और शुड वी जॉइन ऑफिशियली एनी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़. तो ये सारे डाउट्स नॉर्मली स्टूडेंट्स को होते हैं particularly during the main season. So there was a lot of demand with respect to the students, what to do, what not to do. To avoid this particular confusion, I'm making this video so that I will tell you a detailed perspective as to why you can join and why you cannot join, what are the perceptions, what are the popular opinions. Few people will be saying कि नहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना is waste of money. Few people will be saying no, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना is necessary. So what is my opinion? Based on that, I'll be telling you some specific inputs which will help you in deciding whether you want to join or you wish to join a test series or not. And let me remind you, this is not any promotion of any particular institute or any particular test series को popular करने के लिए, वो सारा चीज़ के लिए ये वीडियो नहीं है. This is purely based on facts and based on my analysis with respect to I have given 2 interviews and I have joined sufficient institutes का test series. So you can just get a reference here as to what needs to be done. So let's move on. मोस्ट प्राइमरी 2 ओपिनियंस रहते हैं हमेशा टेस्ट सीरीज़ के लिए. मेजॉरिटी फ्यू पीपल विल बी सेइंग कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो लेट मी टेल यू कि इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू जॉइन अ पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़, उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, दोज हु आर नॉट प्लानिंग टू जॉइन एनी टेस्ट सीरीज़, फॉर देम सम एडेड एडवांटेजेस विल बी. उनका कुछ पॉजिटिव्स ये हैं कि यू कैन फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी, यू विल हैव टोटल फ्रीडम. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे मेंस में होता है GS 1, 2, 3, 4 एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो अपने टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं उनमें सीक्वेंशियल ऑर्डर ये होता है कि दे विल टेक GS 1 का टेस्ट, देन 2, देन 3, देन 4. A particular student who wants to study ethics first and consolidate ethics on a comprehensive manner, since it's a deciding factor. और कोई बंदा होगा जिनको नॉर्मली GS एथिक्स, GS 4 एंड GS 2 पहले करना होगा, तो वो फ्रीडम नहीं मिलता. यू हैव टू फॉलो द पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़. दो इन एनी टेस्ट सीरीज टेस्ट आर फ्लेक्सिबल, सो इट कैन बी पोस्टपोन्ड बट प्रीपोन्ड नहीं होते हैं. तो यू हैव टू keep these things in mind. That is the one of the positive reference as to why you should not join a test series. Also, the people who are not joining test series will have the advantage of making their own plans. जब मुझे suitable लगेगा, I can suitably divide. Few people will be wanting to give more time for GS 4. Few people will be wanting to give very less time to GS 3, GS 2. So they can suitably reduce the time limit between the test. अगर इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करेंगे तो उसमें फिक्स रहता है 1 वीक या 10 days. यू विल हैव टू फॉलो दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो. तो फॉर दोज पीपल हु आर नॉट ज्वाइनिंग द टेस्ट सीरीज़, दे हैव एन एडवांटेज. दे कैन प्रैक्टिस एनी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़, कहीं से भी मार्केट से लेके दे कैन प्रैक्टिस. जो इंस्टीट्यूट का लेना है सबका अवेलेबल होता है मार्केट में, सो दे कैन प्रैक्टिस फ्रॉम अ होल लॉट मैनी अदर टेस्ट सीरीज ऑल्सो. सम डिसएडवांटेजेस आर देयर, एज इन lot many students who will be doing it on your own, they will face the issue of deadline. जैसे कि if we have a particular deadline in our mind कि इस डेट को टेस्ट लिखना है, तो we will push ourselves more. So that is the reference which here I am giving you कि अगर deadline नहीं होगा तो you will be lax, you will waste a lot of time, you will take things lightly, which will end up extending your time to give a particular test, which is not very good. मान लीजिए इफ़ यू आर नॉट जॉइनिंग एनी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ एंड आपने कुछ प्लान भी नहीं बनाया कि ओके फ्रॉम दिस डे टू दिस डे आई विल डू इंस्टीट्यूट ये टेस्ट सीरीज़ GS 4, GS 3 एंड विच टेस्ट सीरीज़, विच इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करूँगा, उसका कोड वगैरह देख के विच टेस्ट सीरीज़ इज़ कमिंग ऑन विच डे, ये पूरा प्लान अगर नहीं बनाया है तो यू विल बी एट अ वेरी मिजरेबल पोजिशन हियर, क्योंकि यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम और वो मेंस का सीज़न भी ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव अ कंप्लीट प्लान यू विल फेस दिस पर्टिकुलर इशू. ऑल्सो अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, योर कॉपीज़ विल नॉट बी इवेलुएटेड एंड दैट इज़ वॉट
will not give you a fair judgment as to where you stand. You will not come to know कि मेरा preparation level कैसा है, do I need to add value addition, what needs to be done, what should I do more, ये आपको पता नहीं चलेगा. Contrary to this, if you join a particular test series, so उसमें कुछ कुछ positives होते हैं, जैसे कि detailed plan मिलता है आपको in advance so that you can plan your test series accordingly. Then schedule भी उसका ready-made रहता है so that you can order your preparation, plus उसमें which subject, which topic to study from, which book, वो सारी चीज़ें भी उसमें mentioned रहती हैं. तो that way it can help you a lot. Plus there will be a timely evaluation. तो जो भी आप टेस्ट लिखोगे टाइमली इवैल्यूएट होके मिल जाएगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू विल गेट मेंटरशिप सपोर्ट. अगर यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, यू वोंट बी गेटिंग मेंटरशिप सपोर्ट. दो मेंटरशिप सपोर्ट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन ऑल द इंस्टीट्यूट्स, बट सम प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड मेंटरशिप सपोर्ट. तो अगर आपको वो लेना है तो यू विल हैव टू जॉइन अ पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़. अब कॉन्स में ये होता है कि यू विल हैव टू स्पेंड सम मनी. ठीक है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो इट डिपेंड्स. अगर आप ईयर लॉन्ग ले रहे हो तो इट कम्स टू अराउंड 30,000 के आसपास आता है. इफ़ यू आर टेकिंग ओनली फॉर मेंस का सीज़न दैट कम्स अराउंड सम 12 to 15K. तो इट वेरीज इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, तो यू विल हैव टू फिगर दैट आउट. प्लस अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ कॉन्स भी आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं कि इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता है. इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही होती है. लोग बोलते हैं कि जो पेपर इवैल्यूएट कर रहे हैं वो मोस्टली बंदे होते हैं जिन्होंने मेंस लिखा है या जिन्होंने इंटरव्यू कभी दिया होगा. तो दोज पीपल आर नॉट वेरी एक्सपर्ट्स इन दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो ऐसा होता है, बट ट्रस्ट मी, लॉट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, I mean the prominent ones actually, they do a very detailed scrutiny, they do a regular test, they do regular model answer formulation of those particular evaluators so that quality उसमें compromise नहीं हो and they get the best of the evaluators. Plus they have a particular standards which are recommended, जो उनको follow करने होते हैं. Plus there are reviewers also who frequently monitor their particular work of evaluation and everything. So to an extent evaluation standards are decently maintained, though I'm not denying the fact कुछ evaluators कहीं पर भी कभी ना कोई भी इंस्टीट्यूट में कुछ evaluators ऐसे मिलेंगे आपको जो कुछ अपना काम ठीक से नहीं करते हैं. तो that happens, but that is like we cannot control that scenario. तो इतना भी मतलब ऐसा नहीं है कि इवैल्यूएशन एकदम ही बेकार होता है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा. दैट इज़ नॉट सो. यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट. यू विल बी गेटिंग डिसिप्लिन इन योर प्रिपरेशन. यू विल बी गेटिंग टू नो व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट. ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं उसमें. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू विल बी गेटिंग मॉडल आंसर्स एंड एवरीथिंग. प्लस वॉट एवर यू हैव रिटन, आपको थोड़ा सा कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा, कुछ इवैल्यूएटर्स के कमेंट्स मिलेंगे, मेंटरशिप आपको सपोर्ट मिलेगा. फ्रॉम देयर द मेंटर्स विल गाइड यू व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट. तो वो सारे एस्पेक्ट्स भी कंसिडर करने चाहिए. ठीक है, सो मूविंग ऑन. सो नाउ सिंस वी हैव डिस्कस्ड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स, नाउ व्हाट शुड वी डू. टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना करें. तो देखो, अगर मान लीजिए इफ़ अ पर्सन इज़ अ खिलाड़ी कैंडिडेट्स आर दोज पीपल हु हैव रिटन मल्टीपल मेंस या एक आध बार मेंस लिखा हो. ठीक है, और दोज पीपल हु हैव गिवन इंटरव्यू ऑल्सो, फॉर देम आई रेफर दिस पर्टिकुलर टर्म खिलाड़ी कैंडिडेट्स. तो अगर वैसे बंदे हैं तो उनमें अगर कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है तो दे कैन डेफिनेटली जॉइन अ टेस्ट सीरीज़. ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा उनको डेफिनेटली वैल्यू एडिशन मिलेगा, टाइमली उनका सिलेबस कंप्लीट होगा, सो दैट दे कैन फोकस ऑन अदर एग्जाम्स और अदर एरियाज ऑल्सो. इन केस अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इशूज़, देन व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ कि यू कैन जस्ट टेक प्रिंट आउट, यू कैन जस्ट टेक मार्केट से कोई भी इंस्टीट्यूट के 2 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ उठा लेना सीक्वेंशली. जस्ट लुक एट देयर शेड्यूल बिफोर हैंड. इंस्टीट्यूट से शेड्यूल ले लीजिए उनका, देन सी विच टेस्ट इज़ रिलीजिंग व्हेन, देन प्लान अकॉर्डिंगली. अब जो टेस्ट रिलीज़ हो जाता है उसके अराउंड 1 वीक बाद मार्केट में मिलना स्टार्ट होता है. तो यू शुड प्लान योर टेस्ट सीरीज़ अकॉर्डिंगली एंड डूइंग दिस अलॉन्ग विथ PYQ एनालिसिस. ब्लूप्रिंट बना के PYQ सॉल्व करते हैं कैसे,
ये सारा मैंने PYQ एनालिसिस का तरीका, ब्लूप्रिंट से कैसे बनाना है, क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ जो दूसरी हम लेंगे मार्केट से उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारा एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, आंसर राइटिंग वीडियो. सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट पर्टिकुलर वीडियो, एंड गेट सम रेफरेंस एज टू हाउ टू अप्रोच दिस सिनेरियो एंड दिस सिनेरियो. नाउ मूविंग ऑन, if suppose a person is a beginner, मतलब उन्होंने जस्ट अभी ज्वाइन की है टेस्ट सीरीज़, मतलब अभी अभी उनका फाउंडेशन हुआ है, फर्स्ट प्रीलिम्स हुआ है या प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, बट उन्होंने आंसर राइटिंग अभी तक कभी भी प्रैक्टिस नहीं की है. फॉर दोज पीपल इट इज़ एडवाइजेबल टू जॉइन अ टेस्ट सीरीज़ टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन. एटलीस्ट एक बार तो आप टेस्ट सीरीज़ कोई ना कोई ज्वाइन कर ही लीजिए in your entire journey, particularly in the beginning of your UPSC journey, so that आपको एक मेंस में आंसर राइटिंग का फर्स्ट टेस्ट मिल जाएगा. Why I am telling you this is because see what happens is, अभी कोई बच्चा है तो इनिशियली ही विल बी वॉकिंग, उसको वॉक करना नहीं आएगा तो ही विल बी नीडिंग सम हैंड होल्डिंग सपोर्ट. आफ्टर दैट ही विल गेट यूज टू इट. सो इनिशियल लेवल में अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है आंसर राइटिंग का, एंड इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट ऑन योर ओन, सो यू विल डेवलप अ मिसकंसेप्शन, या आप थोड़े से प्रीजुडिस हो जाओगे कि ये मैंने जो लिखा है ये सही है गलत है. यू विल नॉट बी एबल टू जज द क्वालिटी ऑफ योर आंसर. So whatever wrong concepts or whatever wrong understanding of answer writing you will be developing, you will be enforcing that for the rest of your journey. And in case if later on if you find out कि यार मेरा तो ये strategy थोड़ा सा गलत है आंसर राइटिंग का, that time it will be very difficult for you to change your strategy. सो एट द बिगिनिंग इटसेल्फ एक बार आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो कहीं पे, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आपको इनिशियल लेवल पे इवैल्यूएशन पता चल जाएगा. आपको पता चलेगा कि कौन सा कहाँ पे क्या पॉइंट लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे आंसर प्रेजेंट करना है. प्लस यू विल बी गेटिंग मेंटरशिप सपोर्ट, वहाँ से भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा एज टू व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ऑल दोज एस्पेक्ट्स यू विल बी वेरी वेल वर्स्ड विथ. So suppose if a particular student is writing mains, ठीक है, if a particular person is writing mains, so for those particular people you must join a test series. क्योंकि why I am telling you this is because normally mains का टाइम होता है 3.5 months. अब उसमें से भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आए नहीं आए ये सब हटा के हम इफेक्टिवली वी कैन टेक 3 months का गैप. In those 3 months you have to finish GS 1, 2, 3, 4. You have to have a command over essay. You have to have a command over your optional subject. So if you want to do all these things in those 3 months, it will be very difficult for you to plan everything on your own. So best will be कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए. You will be given a detailed schedule, detailed plan, so that you can follow it and follow it diligently, so that all your GS, essay, optional, everything is covered till mains. You will be perfectly ready. तो ये strategy हम कर सकते हैं particularly for people who are about to give mains. तो now essentially since we have discussed all the aspects of test series and everything, test series join करना, advantage, disadvantage, all those aspects. Now essentially one more common confusion is which test series to join. ये एक डाउट हमेशा रहता है. मार्केट में इतने सारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, प्लस इतना सारा कंपटीशन है, प्लस लॉट ऑफ मड स्लिंगिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स अमॉन्ग्स द इंस्टीट्यूट्स. ये इंस्टीट्यूट इसके बारे में कुछ गलत बोलता है, वो उसके बारे में बोलता है, एंड एवरीथिंग. सो आई हैव जस्ट कंपाइल्ड एवरीथिंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग so many mains, my experience of giving 2 interviews, my experience with respect to the market research which I have done, my experience with respect to my students or my friends, whoever is into this particular industry. I have done a detailed analysis. तो उसके basis पे I have just mentioned few points like on what parameters we'll be judging based on quality में आता है questions and the model answers of that particular institute, evaluation standard कैसा है, plus mentorship support उस institute में कैसी है. So right from we'll start कि अभी जैसे विजन IAS है, तो विजन IAS में when we look at,
तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर्स इज़ गुड, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, दैट इज़ गुड. एंड इवैल्यूएशन भी उनका अच्छा ही है, नो इश्यूज़ विद दैट. एंड मेंटरशिप सपोर्ट भी टू एन एक्सटेंट उधर पे प्रेजेंट है, बट द क्वालिटी ऑफ मेंटरशिप देयर इज़ नॉट वेरी गुड, सो इट्स ऑलमोस्ट एन एवरेज काइंड ऑफ सिनेरियो, ठीक है. With respect to शून्य, questions and model answers to an extent is good. इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड उसका मोर और लेस थोड़ा बहुत एवरेज लगा मुझे, इतना कुछ अच्छा नहीं है. एंड मेंटरशिप भी उसकी एवरेज ही है. राउज एंड वाजीराम में क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर्स टू एन एक्सटेंट ठीक है, इतना कोई खास इशू नहीं है उसमें. इवैल्यूएशन इन बोथ ऑफ देम मोस्टली एवरेज ही है, बिकॉज इनके इवैल्यूएटर्स मोर और लेस इतने ज़्यादा रिक्रूट भी नहीं होते हैं, नाइदर इंस्टीट्यूट्स, ये मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इनके टेस्ट सीरीज़ भी कुछ खास ज्वाइन नहीं करते, इतने पॉपुलर नहीं हैं, तो दे डोंट इन्वेस्ट मच इन इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. मेंटरशिप इज़ ऑल्सो टू एन एक्सटेंट एवरेज, ठीक है, थोड़ा सा. सो अभी इनमें मेंटरशिप में विजन, शून्य, राउज एंड वाजीराम में वी कैन से कि दिस इज़ स्लाइटली अबव एवरेज, और बाकी ये तीन तो ऑलमोस्ट एवरेज ही हैं, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू अ विनर विच वी हैव हियर विथ रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूट्स वेयर यू कैन ब्लाइंडली फॉलो मेंस का टेस्ट सीरीज इज़ डेफिनेटली फोरम IAS. Now I am not promoting any particular institute here, but you can ask in the market. Majority of the people will tell you based on their own experiences, my own experiences of joining this particular test series. I have joined almost every test series here, whichever I have mentioned, be it Forum, Vision, Rouse, Wajiram. तो मेरे को सारा एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस प्लस बेस्ड ऑन ऑल my friends and everything, सारे लोगों का experience and based on what the toppers are saying these days. So based on the entire analysis, Forum IAS is definitely a very good test series, especially for mains. Particularly उनके questions और model answers की quality is amazing. बहुत research चलता है उसमें, and I have personally seen it's a very good program, and questions and model answers are amazing and evaluation is very good, ठीक है, no doubt about it. उसका evaluation standard is also comparatively is very good. And most importantly Forum IAS का advantage ये है कि the mentorship support is excellent. They have a very good team of dedicated, experienced and very good intellectual trained mentors who can train for all the GS subjects. They have exclusive dedicated mentors for essay, dedicated mentors for GS 1, 2, 3, 4, dedicated mentors for optional also. So उनका mentors का very professional behavior, slots book किए जाते हैं, you are given a specific amount of time, you can discuss your answer copy with them, you can highlight specific areas where you want to work on, you can build a very good relation with the mentor, you can ask कि कौन सा book पढ़ना चाहिए, कौन सा source पढ़ना चाहिए, you get that desired hand holding support in Forum IAS. That is what I like about that particular institute the most. So that is the reason why I would suggest Forum IAS का मेंस का टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी गुड. उसमें भी उनके वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि एक MGP होता है, उसमें सिर्फ GS होता है. Then we have MGP plus where you get GS plus essay. Then we have MGP plus plus, here we have different GS भी होता है, इसमें essay भी होता है, plus we get some concept classes also, ठीक है. So that is how what is followed in Forum IAS. So based on my analysis I have presented some reality, whatever is happening, what you need to do with respect to joining a test series or not. अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन भी करना है तो which टेस्ट सीरीज़ should I join. पर्टिकुलरली ये वीडियो देख रहे हो आप, तो even if you are joining a particular test series, even if you are not joining a particular test series, how to approach a particular answer, how to approach solving PYQs, how to approach particularly while solving दूसरे इंस्टीट्यूट का मार्केट से जब हम क्वेश्चन पेपर उठा के करते हैं, तो हाउ टू अप्रोच दैट एस्पेक्ट, ये सारा मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है आंसर राइटिंग का.
It's a very comprehensive video which will solve all your answer writing doubts, so you can please watch that video also. And that's it from my side. All the best, people, and take care, eat healthy, and take good care of yourself, particularly main season may. See you in the next video. Share it particularly with people who are confused as to joining a test series or not, and particularly people who are giving mains this year. So take care, good luck, have a good day, take care, bye bye.